ہمارے ممبئی کے جو کیریئر کاؤنسلر ہیں میں ان کا بہت ممنون اور مشکور ہوں. عامر صاحب کا بہت ذہن اس طرف بہت تیز ہے اور انہوں نے کچھ لوک مت پیپر کا اردو میں ٹرانسلیشن کر کے 4 تاریخ کے انقلاب پیپر میں انقلاب نیوز پیپر میں وہ ساری معلومات کو انہوں نے جو ہے انقلاب نے دیا تھا. اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تو اس کی معلومات آپ کو ملی ہوگی. اس معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری یہ سلائڈ اسی پر مشتمل ہے. عامر سر کا عابر انصاری سر کا میں بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارے طلباء کے لیے بورڈ کی جانب سے جو ہدایت مراٹھی میں جو شاعری تھی اس کو اردو میں شائع کر کے ہماری رہنمائی فرمائی. اس سے میں ان کا ممنون ہوں. تو تاریخ اور سیاسیات کا سوالیہ پرچہ کل 40 نمبر کا ہوگا. اس پرچے میں 28 نمبر تاریخ جبکہ 12 نمبر سیاسیات کے لیے مختص ہیں. پرچے میں کل 9 سوالات ہوں گے. یہ پرچہ 9 سوالات پر مشتمل ہوگا. سوال نمبر 1 سے سوال نمبر 5 تک کے سوالات تاریخ کے نصاب پر مشتمل ہوں گے. یعنی تاریخ کے جو 7 اسباق ہیں سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 9 جس میں چوتھا اور چھٹا 2 سبق حذف کیا گیا ہے. تو ان 7 اسباق پر مشتمل جو پرچہ ہوگا اس میں امتحان میں پرچے میں سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 5 تک کے سوالات اس نصاب پر مشتمل ہوں گے. جبکہ سوال نمبر 6 سے سوال نمبر 9 تک کے سوالات سیاسیات کے نصاب سے پوچھے جائیں گے. یہ مکمل پرچہ حل کرنے کے لیے طلباء کو 2 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا. 28 نمبر تاریخ کے لیے 12 نمبر سیاسیات کے لیے کل 40 نمبر کا پرچہ. سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 5 تک سوالات تاریخ کے نصاب سے. سوال نمبر 6 سے لے کر سوال نمبر 9 تک کے سوالات سیاسیات کے نصاب سے پوچھے جائیں گے. اور یہ پرچہ حل کرنے کے لیے 2 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا. سوالیہ پرچہ کون سا سوال کتنے مارکس کا رہے گا آپشن کے ساتھ. سوال نمبر 1 الف درج ذیل مناسب متبادل چن کر بیان دوبارہ لکھیے. اس کو ہم خانہ پوری کہتے ہیں. 3 مارکس کی خانہ پوری رہے گی. 3 جملے دیے جائیں گے. ہر خانہ پوری کے لیے 4 آپشن رہے گے. 4 میں سے ایک جو صحیح آپشن ہے وہ خانہ پوری میں لکھنا ہے. آپ کو بچوں کو بتانا ہے کہ آپ اس سوال کو کیسے حل کریں گے. خانہ پوری لکھتے وقت ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں بورڈ کے پرچے جانچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی بچے کیا کرتے ہیں کہ خانہ پوری کا سوال لکھتے وقت پورا جملہ نہیں لکھتے, صرف خانہ پوری والا لفظ جو ہے وہ لکھتے ہیں. آپ کو بچوں کو بتانا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے. ایسے کرنے پر نمبر نہیں ملیں گے. آپ کو پورا جملہ لکھنا ہے اور جہاں پر خانہ پوری میں جو لفظ لکھنا ہے اس لفظ کو 2 مرتبہ آپ کو پینسل سے انڈر لائن کرنا ہے. یہ بات آپ بچوں کو واضح کرتے ہیں. سوال نمبر 1 کا الف خانہ پوری ہے 3 مارکس کی. سوال نمبر 1 کبھی مندرجہ ذیل ہر گروپ میں سے غلط جوڑی پہچان کر لکھیے. آپ کو بچوں کو واضح کرنا ہے کہ آپ کو صرف غلط جوڑی پہچاننا ہے. آپ کو اس کو صحیح کر کے نہیں لکھنا ہے. اس میں 3 جو ہے وہ باکس دیے جائیں گے. ہر باکس میں 4 جوڑیاں رہے گی اور ان 4 میں سے ایک جوڑی غلط رہے گی. 3 جوڑیاں صحیح رہے گی. بچوں کو صرف پہچاننا ہے کہ کون سی جوڑی غلط ہے اور اس غلط جوڑی کو ان کو اپنے آنسر کاپی میں لکھنا ہے. آپ ان کو واضح کیجیے. 3 باکس اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو بتا دیجیے کہ ہر باکس میں ایک جوڑی غلط ہے. 3 میں ایک جوڑی غلط ہے. آپ کو صرف پہچاننا ہے کہ کون سی جوڑی غلط ہے. جو جوڑی غلط ہے اس جوڑی کو آپ کو اپنے آنسر کاپی میں لکھنا ہے. بس اتنا کرنا ہے. بچوں میں تھوڑے آسانیاں ہم کو فراہم کرنا ہے. ان کو آسان سے آسان طریقے بتانا ہے تاکہ ان کو لگے کہ یہ مشکل نہیں, بہت آسان ہے. آگے بڑھتے ہم سوال نمبر 2 کے لیے مندرجہ ذیل تصوراتی خاکے مکمل کیجیے. کوئی 2
4 मार्क्स का ये सवाल है। इम्तिहान में 3 खाके या 3 तरसीम या 3 जदौल दिए जाएंगे। 3 में से बच्चों को 2 हल करना है। एक खाका मुकम्मल करने के लिए 2 मार्क्स है। 2 खाके मुकम्मल करने पर उनको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। बच्चों को आपको बताना है कि खाके आपको पेन से बनाना है, पेंसिल से नहीं बनाना है। और जैसा खाका आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, हूबहू वही खाका आपको अपने आंसर पेपर में बनाना है। सवाल नंबर 2, सबक मंदरजा झेल इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए। कोई 2, इसमें भी 3 इस्तिलाहात, 3 साइड हेडिंग दी जाएगी। 3 साइड हेडिंग में से 2 साइड हेडिंग बच्चों को लिखना है। बाकायदा साइड हेडिंग लिखकर आपको उसके बारे में 4 से 5 चीजों में उसकी वजाहत करनी है। बच्चों से ये कहना है कि आप पहले देखिए, तीनों का मुशाहिदा कीजिए कि इन 3 में से आपको कौन से 2 आसान लगते हैं, आप उनके बारे में लिखिए। 4 मार्क्स का सवाल है। ये बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 जितनी सवालात नहीं है। सवाल नंबर 3 में बयानात की वजाहत की वजूहात के साथ वजाहत करना है। ये भी 2 मार्क्स का एक सवाल है। इसमें 4 बयानात दिए जाएंगे। 4 बयानात में से कोई 2 हल करने हैं। एक बयान के लिए 2 नंबर है। 2 बयान हल करने पर बच्चों को 4 नंबर दिए जाएंगे और इसका जवाब भी बच्चों को 4 से 5 जुमलों में लिखना है। आप बच्चों को बताइए कि चारों बयानात, 4 बयान आपके क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं। आप उसे गौर पढ़िए और आप देखिए कि आप किसका जवाब अच्छे से और आसानी से लिख सकते हैं। आप यहाँ से शुरुआत कीजिए। सवाल नंबर 4, दर्ज झेल इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी गई सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। बच्चों से बताइए कि पूरे तारीख और सियासियात के पूरे पर्चे का सबसे आसान सवाल है। ये 4 मार्क्स तो हर बच्चे को मिलना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। एक पैराग्राफ दिया जाएगा के नीचे 3 सवालात दिए जाएंगे। 2 सवालात के जवाबात या तो एक लफ्ज में लिखना है या एक जुमले में लिखना है और एक सवाल के जवाबात 1 या 2 जुमले में, एक सवाल का जवाब 1 या 2 जुमले में लिखना है। वही पैराग्राफ में तीनों सवालात के जवाबात रहेंगे। वही सवालात के जवाबात आप बच्चों से कह सकते हैं कि ये पूरे तारीख और सियासियात के पर्चे का सबसे आसान सवाल। होता ये है कि लैंग्वेजेस में भी पैराग्राफ रहते हैं और बच्चों को पैराग्राफ के सवालात लिखने की आइडिया नहीं होती है। हमारे बच्चे क्या करते हैं, सवाल में कोई एक लफ्ज ढूंढते हैं, वो लफ्ज को पकड़ कर जो है पैराग्राफ में वो लफ्ज ढूंढते हैं और फिर क्या करते हैं, उस लफ्ज की ऊपर की एक लाइन और वो लफ्ज जिस लाइन में वो लाइन और उस लफ्ज के नीचे की एक लाइन, वो तीनों लाइन जो है वो लिख देते हैं। आप उन्हें बताइए कि ऐसा ना करें। ऐसे सवालात की आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएं और हर बच्चे को, इम्तिहान में बैठने वाले हर बच्चे को ये 4 मार्क्स तो आसानी के साथ मिलना ही चाहिए। सबसे आसान सवाल है ये पूरे पेपर का। बच्चे जरा से अगर इस तरफ ध्यान दें तो आसानी के साथ ये 4 नंबर वो ले सकते हैं। तारीख का आखिरी सवाल, 5वां सवाल, दर्ज झेल के मुफस्सिल जवाबात ये कोई 2। ये सबसे ज्यादा नंबर इस सवाल को है, 6 नंबर है। 2 के जवाबात लिखना है हमको, जो है इसमें 4 दिए जाएंगे। चारों को आप बगौर देखें बच्चे और ये फैसला करें कि कौन सा उन्हें लिखना है। इस सवाल का जवाब आप पॉइंट्स में लिखिए या फिर इस सवाल का जवाब साइड हेडिंग के मुताबिक भी हो सकता है। मुफस्सिल जवाब कोई 2 हल करना है। 3 मार्क्स एक सवाल के लिए, 2 सवाल हल करने के लिए 6 नंबर। इस तरह तारीख तक को ये पर्चा अगर हम देखें
तो 28 नंबर का मार्क्स विद ऑप्शन 42। आगे बढ़ते हैं सियासियात की तरफ। सियासियात का 12 नंबर का पर्चा है। सवाल नंबर 6 बिल्कुल सवाल नंबर 1 से अलिफ की तरह मुतबादिल चुनकर बयान को दोबारा लिखना। 2 मार्क्स 2 खानापुरी दी जाएगी 4 ऑप्शन के साथ, जैसे 3 गलत और 1 सही रहेगा। जो सही ऑप्शन रहेगा वो बच्चों को पूरे जुमले के साथ उतारना है और पेंसिल से 2 मरतबा उस जगह अंडरलाइन करना है। फिर सवाल नंबर 7 बयानात सही है या गलत वजूहात के साथ लिखिए। कोई 2, इसमें 3 बयानात दिए जाएंगे। बच्चों को तीनों बयानात पहले पढ़ने के लिए कहिए और फिर उनमें से 2 बयानात जिनके वो जवाबात आसानी के साथ लिख सकते हैं उन्हें हल करने के लिए कहिए। 4 मार्क्स का एक सवाल है। अब बच्चों से कहिए कि पहले आपको जुमला मुकम्मल लिखना है इसमें कि ये बयान सही है, दिया गया बयान सही है। बयान मुकम्मल लिखने के बाद, बयान सही या गलत लिखने के बाद ही जो है वो आपको जो है उसके बाद उसकी वजह लिखना है। पहले आपको ये लिखना कंपलसरी है कि ये बयान सही है गलत। बयान सही है गलत बताने से पहले आप अगर उसकी वजह बताएंगे तो आपको जो है नंबर नहीं मिलेगा। आपको पहले जुमला लिखना ही है ये बयान सही है या गलत, उसके बाद आप जो है उसकी वजह लिखिए। सवाल नंबर 8 में 2 ज़िमनी सवालात हैं। सवाल नंबर 8 का ए मंदरजा झेल इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए। कोई एक साइड हेडिंग दिए जाएंगे आपको, दो में से किसी एक साइड हेडिंग पर आपको जो है 3 से 4 लाइन में 3 से 4 जुमलों में उसका जवाब लिखना है। 2 मार्क्स का ये सवाल है। सवाल नंबर 8 का बे मंदरजा झेल तस्वुराती खाके तैयार कीजिए या मुकम्मल कीजिए। कोई एक, इसमें भी 2 खाके आपको दिए जाएंगे। 2 में से आपको किसी एक खाके के बारे में लिखना है। सवाल नंबर 9 आखिरी सवाल, इस पर्चे का मुख्तसर जवाब लिखिए। कोई एक, 2 सवाल दिए जाएंगे। 2 में से किसी एक का जवाब 3 या 4 लाइन में बच्चों को लिखना है। 2 मार्क्स का ये सवाल है। इस तरह सियासियात का ये पर्चा कुल 12 नंबर का और ऑप्शन के साथ 20 नंबर। ये देखिए पेपर में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। मुतबादिल ऑब्जेक्टिव 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। शॉर्ट आंसर मुख्तसर जवाब जो 60% और लॉन्ग आंसर 20%। हम देख सकते हैं कि इसमें शॉर्ट आंसर जो है जैसे वजूहात के साथ वजाहत करना, बयान सही है गलत लिखना, नोट लिखना, ऐसे सवालात जो है इसको हम जो है शॉर्ट आंसर कह सकते हैं। शॉर्ट आंसर का परसेंटेज जो है ये ज्यादा है पर्चे में। सवालात की नोयत के लिहाज से ये नंबरात किस तरह तकसीम होती है। ऑब्जेक्टिव टाइम 20% रहता है, लॉन्ग आंसर 20% रहता है और सबसे ज्यादा जो है सवालात सबसे ज्यादा बच्चों को मेहनत करनी है वो शॉर्ट आंसर करनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल। मुश्किल और आसान सवालात के लिहाज से नंबरात की तकसीम। 40% सवालात इजी होते हैं, आसान होते हैं। 40% सवालात जो है वो औसत मीडियम दर्जे के होते हैं और 20% सवालात थोड़े से मुश्किल दर्जे के होते हैं। इसमें तलबा को बच्चों को जो है थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल। मुश्किल और आसान सवालात के लिहाज से ये नंबर की तकसीम है। ये वक्त की मंसूबाबंदी, टाइम मैनेजमेंट। बच्चों को 2 घंटा यानी 120 मिनट पेपर लिखने के लिए मिलते हैं। उन 120 मिनट में बच्चे जो है वो कौन सा सवाल कितने मिनट में हल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही टाइम मैनेजमेंट हो, 2-4 मिनट आगे पीछे इसमें हो सकता है, लेकिन ये बात आप बच्चे से कह दे कि कम अज कम 10 मिनट पहले आपका पूरा पर्चा सवाल नंबर 1 से लेकर
सवाल नंबर 9 तक 10 मिनट पहले आपका पूरा पर्चा हो जाए